हेलो एवरीवन, हम लोग 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे हैं एंड टुडे वी विल सी द थर्ड वर्कशीट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. सो लेट अस स्टार्ट. प्रॉब्लम नंबर 1 गिवन है इक्वेशन ऑफ द कर्व x by a to the power n plus y by a to the power n is equal to 2 और हमें प्रूव करनी है that this line touches the curve at a comma b. So indirectly हमें प्रूव करनी है that this is the equation of the tangent at the point a comma b and this is the equation of the curve. हमें simply equation of the tangent find करनी है. Point given है, that means only we have to find the slope. Simple है, बस differentiation कीजिए, dy by dx find कीजिए. So this is the equation of the curve. हमने इसको separately लिख लिया x to the power n plus a to the divided by a to the power n plus y to the power n divided by b to the power n is equal to 2. Then we have done the differentiation. So power का differentiation करना है n x to the power n minus 1. Denominator में जो constant है will be as it is. Similarly y to the power n का derivative n y to the power n minus 1 into dy by dx. b to the power n will be as it is. Now इसको simplify कर देना है and this is our dy by dx. लेकिन we know that dy by dx at a particular point we have to find which is given in the problem. So let's put in the place of x we will put a, in the place of y we will put b. Put कर देना है, सॉल्व कर देंगे. देखो a की पावर n है, a की पावर n minus 1. So denominator a is left. Similarly numerator b is left. So this is the slope of the tangent. Done. Point मिल गया है, slope मिल गया है. We know y minus y1 is equal to m x minus x1. So point is a comma b. So y minus b is equal to slope of the tangent. We can put it from here. into x minus a. ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. ओनली थिंग इज दैट अब हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लाना है. सिंप्लीफाई कर देंगे, प्रोसेस आप देख रहे हैं एंड अल्टीमेटली वी गेट दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 2. सो टू पैराबोलाज आर गिवन. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया. x स्क्वायर इक्वल टू 4by इक्वेशन 2 ले लिया गया. Now let x1 y1 is the point of intersection of two parabolas. So suppose एक parabola हमारा ये इस तरह का है, another is this one. So one of the point of intersection will be origin that we have to neglect as it is given in the problem. So we have to talk about other point of intersection. So let us continue this. हमने assume किया x1 y1 is the point of intersection. That means it will satisfy the first parabola. We got equation 3. It will also satisfy the second parabola. We got x1 square is equal to 4by1 equation 4. Now this equation will give us y1 value. It is x1 square by 4b. This is y1. This y1 we have put into the first equation. y1 की वैल्यू हमने पुट कर दी. सो x1 स्क्वायर बाई 4b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1. सिंप्लीफाई करेंगे, x1 टू द पावर 4 बाई 16b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1. x1 हम कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज x1 इज नॉट जीरो. ऑरिजिन हमने पहले ही हटा देना है. सो x1 कैन नॉट बी जीरो. यदि x1 जीरो होगा तो y1 विल ऑल्सो बी जीरो. वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर ऑरिजिन. सो x1 एक कैंसिल हो जाएगा. We will get x1 cube this much. Finally we will get x1 is 4a to the power 1 by 3, b to the power 2 by 3. Let it is equation 5. Now again इसको put कर देंगे equation 4 में. So y1 की वैल्यू थी x1 square by 4b. हमने x1 की वैल्यू put कर दी. सॉल्व करेंगे तो ध्यान देंगे इस जगह पे a की पावर थी 1 by 3, b की पावर थी 2 by 3 और y1 में a की पावर हो जाएगी 2 by 3 और b की पावर हो जाएगी 1 by 3. दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया. अब हम लोग स्लोप्स फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, डिफरेंशिएशन किया हमने. सो y स्क्वायर डेरिवेटिव 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a.
dy by dx we got this much 2a/y, ये हमारी पहली कर्व के लिए dy by dx आ गई। अब हम लिखेंगे स्लोप। हम जानते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट के लिए हमें पॉइंट को पुट करना होगा। पॉइंट वी हैव ऑलरेडी गॉट, ये है 2a/y, दैट मीन्स हमें ओनली y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू हमने पुट कर दी 4a⁻²/3 b⁻1/3। अच्छे से देखेंगे, कैंसिल होने के बाद a⁻1/3 डिवाइडेड बाई 2b⁻1/3 हमें मिल जाएगी। सिमिलरली हम लोग सेकेंड पैराबोला के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे, पॉइंट को पुट करेंगे, वी विल गेट दिस। सो m1 एंड m2 आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम है, ओनली 2 इज इन द डिनोमिनेटर हियर एंड 2 इज इन द न्यूमरेटर हियर। Over, we got both the slopes m1 and m2. Let theta is the angle between the two parabolas at the point of intersection. Tan theta, ये हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था, एंगल बिटवीन द टू कर्व्स, इट इज mod of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. ओनली थिंग इज दैट m1 और m2 की वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ भी खास नहीं है, जस्ट टेक द एलसीएम, फाइन, सिंप्लीफाई कीजिए, मॉड साइन है तो जो नेगेटिव आ रहा है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा एंड फाइनली वी विल गेट दिस। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में भी है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 3। सो गिवन है टू कर्व्स, कर्व 1 ax² प्लस by² इक्वल्स टू 1 एंड कर्व 2 सेम ही तरह का कर्व है, ओनली डैश इज अटैच्ड इन a एंड b। सो कोफिशिएंट्स अब हो गए a'(x² प्लस b'(y² इज इक्वल टू 1। सो सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। हमें प्रूव करना है ऑर्थोगोनल कंडीशन बिटवीन द टू कर्व्स इज 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/a' माइनस 1/b'। ये हमें प्रूव करनी है। सो ऑर्थोगोनल कंडीशन हम लोग जानते हैं, ऑर्थोगोनल कंडीशन में हम लोग m1 m2 इज इक्वल टू -1 ले लेंगे और उसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये इक्वेशन हमें मिल जानी चाहिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स एज्यूम x1 y1 is the point of intersection of two curves. Correct? This is the point of intersection x1 y1. So x1 y1 will satisfy the first equation of the curve as well as second curve. So हमने first curve में put कर दिया, x के जगह पर x1, y के जगह पे y1. Similarly in the second curve. So this becomes equation 3 and equation 4. अब हमने 3 minus 4 कर दिया, सो 3 minus 4 करेंगे, सो ax1² minus a'(x1² and by1² minus b'(y1², this will become 0, so we will get this much. Now अब हम क्या करेंगे, एक टर्म जो है हमारा इसको हम इस साइड रहने देंगे LHS और ये दूसरे को हम ले आएंगे RHS, तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। And suppose this one is equation 5. So this is the first part of the problem जिसमें हमने assume किया point of intersection x1 y1 है and our aim was to get equation 5. Now this is the second part of the problem. So first equation ये जो given था हमने इसको differentiation किया है। कभी भी आप differentiation करते हो तो लिख दीजिए differentiating both the sides with respect to x. So we got this much. आराम से हम लोग dy by dx फाइंड कर लिए। अब हमें चाहिए m1 एंड m2। सो m1 के लिए ये जो dy by dx आया है इसमें x को हम रिप्लेस कर देंगे x1 से एंड y को रिप्लेस कर देंगे y1 से। 2 तो हमारा कैंसिल हो गया था, सो दिस इज m1 वैल्यू। अब देखा जाए तो दोनों कर्व आइडेंटिकल ही है, मतलब सिमिलर टाइप का है, ओनली a' हो गया, b' हो गया। देयरफॉर जो हमें m1 मिला है तो हमने लिख दिया सिमिलरली m2 वैल्यू इज दिस। आप चाहें तो फिर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो m1 वी गॉट, m2 वी गॉट। नाउ द टू कर्व्स will intersect orthogonally if m1 m2 is equal to -1. This is m1, this is m2, मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू इज -1।
सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, वी विल गेट इक्वेशन 6। अच्छे से लिखिएगा, वी विल गेट इक्वेशन 6। अब सिंपली 5 हमारे पास थी और हमारे पास 6 है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। 5 डिवाइडेड बाई 6 वी विल गेट दिस मच, फिर इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए, वी विल गेट दिस मच। फाइन। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दीजिए प्रॉपर, जिसको साइड एक साइड में कर दीजिए, सो वी विल गेट आवर दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 पार्ट में ये क्वेश्चन बनेगा। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 4। सो गिवन कर्व्स आर, this is the first curve xy equals to a square and this is the second curve x square plus y square is equal to 2a square। हमें क्या यहाँ शो करनी है? We have to show that the two curves touch each other। Now the two curves touch each other can indirectly हमें क्या प्रूव करना है? That the two curves are having same tangent। The two curves are having same tangent, ये हमें प्रूव कर देनी है at the same point, at a common point। ठीक है, at a common point this is the tangent and the same is the tangent for this also। फाइन। tangent क्या है? लाइन है। लाइन में क्या होता है? 2 चीजें होती है, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो हम लोग पहले शो कर देंगे कि दोनों कर्व एक पॉइंट पे टच कर रही है, पॉइंट कॉमन हो गया। फिर हम लोग शो कर देंगे द स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट दैट पॉइंट इज सेम। तो पॉइंट भी सेम है, स्लोप भी सेम है, दैट मीन्स टैंजेंट भी सेम है, एंड इट प्रूव्स दैट द टू कर्व्स टच ईच अदर। ये है पूरा थ्योरी पार्ट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। So let x1 y1 is the point of intersection of the two curves। जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x1 y1 पुट कर दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन में, वी गॉट y1 इक्वेशन 3। नाउ x1 y1 हमने पुट कर दिया सेकेंड इक्वेशन में एंड वी गॉट दिस इक्वेशन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। एंड नाउ y1 की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी a स्क्वायर बाई x1, तो होल स्क्वायर हो गया, सो वी गॉट दिस मच। अब एलसीएम ले लेंगे, वी गॉट दिस एंड फिर ब्रिंग इट टू वन साइड एंड सी दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच गिव्स अस x1 इक्वल टू माइनस a और x1 इक्वल टू प्लस a। नाउ x1 इक्वल्स टू माइनस ए पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, वी विल गेट y1 इक्वल्स टू माइनस ए। सिमिलरली x1 इक्वल्स टू a पुट कर देंगे अगेन इक्वेशन 3 में, वी विल गेट y1 इक्वल्स टू a। सो वी आर गेटिंग 2 पॉइंट्स हियर। सो सपोज हमने नाम दे दिया पॉइंट p इज माइनस a एंड पॉइंट q इज a कॉमा a। हम लोग अभी पहले बात करेंगे पॉइंट p के बारे में। तो ये पहला हमने बता दिया कॉमन पॉइंट। अब हमें बताना है कॉमन स्लोप ऑफ द टैंजेंट। स्लोप ऑफ द टैंजेंट सेम होगी। सो अब ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम स्लोप ऑफ द टैंजेंट फाइंड करेंगे फॉर कर्व 1 एज वेल एज फॉर कर्व 2। स्लोप ऑफ द टैंजेंट दोनों का यदि सेम हो जाएगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन इट प्रूव्स दैट द कर्व्स टच ईच अदर। सो दिस इज द फर्स्ट कर्व xy इक्वल्स टू a स्क्वायर। हमने डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गॉट dy बाई dx इज माइनस y बाई x। अब इस dy बाई dx में हम लोग इस पॉइंट को पुट करेंगे, x के जगह पर माइनस a एंड y के जगह पर माइनस a। सो वी गॉट dy बाई dx एट पॉइंट p पुट कर दिया, सॉल्व किया, इट इज -1। तो ये हमारा पहला स्लोप ऑफ द टैंजेंट आ गया फॉर कर्व 1। अब हम जाएंगे कर्व 2, सेम प्रोसेस, डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बाई dx फाइंड कीजिए और पॉइंट को पुट कीजिए, पॉइंट इज माइनस a। जब हमने सॉल्व किया, दिस अगेन गिव्स अस -a। सो स्लोप ऑफ द फर्स्ट कर्व, स्लोप ऑफ द टैंजेंट फॉर द फर्स्ट कर्व एंड स्लोप ऑफ द टैंजेंट फॉर द सेकेंड कर्व, देखो दोनों सेम आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी सेम है, दैट मीन्स वी कैन राइट इन द कंक्लूजन दैट द टू कर्व्स टच ईच अदर। सो दिस इज अबाउट पॉइंट P। Q के लिए हम लोग सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर पॉइंट
Q also. अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. Part 1 is this and this is the second part. Let us see problem number 5. थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्या बोला जा रहा है प्रॉब्लम में. सो वन कर्व इज गिवन. कर्व की इक्वेशन हमारे पास है. फर्स्ट थिंग, कर्व की इक्वेशन. अब हमारे पास दो लाइन हैं. पहली लाइन इज द टेंजेंट PT. पहली लाइन है PT और दूसरी लाइन है P को यदि ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे OP. सो P इज द पॉइंट कॉमन टू बोथ कर्व एंड द टेंजेंट वेयर टेंजेंट इज ड्रॉन. सो P, this tangent will cut the x-axis at T. करेक्ट. सो दिस इज PT टेंजेंट और यदि P को ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे तो OP. दो लाइन मिल गई, एक टेंजेंट और एक लाइन OP. हमें प्रूव करनी है P का कोऑर्डिनेट, व्हाटएवर इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P, दिस एंगल बिटवीन PT एंड OP इज कांस्टेंट. दैट मीन्स हमें प्रूव करना है ये एंगल अल्फा ये कांस्टेंट है. हमें ओनली गिवन है दिस इज द कर्व. Rest of the things we are going to assume and in the end we will prove that angle between tangent PT and the line OP is a constant. Start करते हैं. This is the curve equation. ये हमने पहले भी डिफरेंशिएट किया है, so प्लीज इसको अच्छे से डिफरेंशिएट कीजिए. Then while simplifying x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. फाइनली आराम से हमें dy by dx की वैल्यू मिल जाएगी. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट वेयर वी आर फाइंडिंग dy by dx. अब हम आ जाएंगे पॉइंट. एज्यूम करेंगे P इज द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज ड्रॉन एंड दिस इज x1 y1. ये हमारा एज्यूम्ड पॉइंट है. अब इस पॉइंट को हम लोग dy by dx में पुट कर देंगे. दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. देन अगेन हम लोग एज्यूम करेंगे PT इज मेकिंग एंगल थीटा विद द x एक्सिस. दैट मीन्स ये जो हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट आया है इसको हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं. सो tan थीटा इज इक्वल टू दिस मच. दिस इज अबाउट फर्स्ट एंगल दिस. अब हम लोग बात करेंगे फाई. सो एज्यूम करेंगे लेट OP इज मेकिंग एंगल फाई विद द पॉजिटिव x एक्सिस. सो tan phi हम लोग जानते हैं y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So this point is x1 y1, this point is 0 0. So simply y1 minus 0 divided by x1 minus 0, this is the value of tan phi. So we got theta, we got phi. We know that how to find angle between two lines. वो फॉर्मूला भी डायरेक्ट आप लगा सकते हो. फाइन. सो थीटा इज द एक्सटीरियर एंगल, अल्फा प्लस phi. So alpha becomes theta minus phi. Now both the sides you can take tan. So tan alpha is equal to tan theta minus phi. Tan theta minus tan phi by 1 plus tan theta tan phi में हमने ब्रेक कर दिया. करेक्ट. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. Taking tan both the sides. So tan alpha is equal to tan theta minus phi. और tan theta minus phi को हमने ब्रेक कर दिया. tan थीटा की ये वैल्यू है, tan phi की ये वैल्यू है, पुट कर दिया. पुट करके सॉल्व करेंगे वी विल गेट 2 by k. अच्छे से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा. सो tan अल्फा इज इक्वल टू 2 by k. सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 by k. दैट मीन्स अल्फा इज ए कांस्टेंट. यही हमें प्रूव करनी थी. इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट वी आर सेलेक्टिंग द एंगल बिटवीन PT and OP is always a constant. Let us see problem number 6. कॉन्सेप्ट सिंपल है लेकिन एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे. एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है तो एकदम एग्जाम में आ सकता है. सिंपल सा क्वेश्चन है. फाइंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट x इक्वल टू 0. ये कर्व की इक्वेशन है. डन. दैट मच इंफॉर्मेशन. अब हमें सिंपली इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड करनी है लेकिन कैलकुलेशन ईजी रहेगा यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे. सो कर्व है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर y प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x एंड x कोऑर्डिनेट गिवन है जिस पॉइंट पे हमें नॉर्मल फाइंड करनी है. हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी. सो y इक्वल टू 1 प्लस 0 टू द पावर y प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर 0.
So this will become 1, this will become 0, so y की वैल्यू 1 आ गई, so point is now 0, 1. Now we will find out dy by dx. अब ये देखो, ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, तो कैसे इसको फाइंड करना है, इसके लिए मैंने दो मेथड बताया था. सो आई एम गोइंग विद द एक्सपोनेंशियल मेथड, क्योंकि मुझे सेपरेटली काम नहीं करना पड़ेगा. सो एग्जाम्पल मैं एक बार फिर से दे देता हूं. यदि मेरे पास x टू दी पावर y है, so this can be written e to the power log x to the power y, which can be written e to the power y log x. तो ये एक हिंट है, ये मेथड हमने डिस्कस किया था लॉगरिथमिक फंक्शन वाले टॉपिक में. नाउ दिस इज देयर. नाउ प्लीज डिफरेंशिएट करेक्टली. जब ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सिंपली 0,1 पुट कर देना है. सो e 0,1 करेक्ट. सो x की वैल्यू 0 पुट करनी है और y की वैल्यू 1 पुट करनी है. तो दिस विल बिकम log 1. log 1 0 होता है, दैट्स व्हाई इट इज e टू द पावर 0. अगेन log 1 विल बिकम 0. दिस विल बिकम 1, written 1 here. Sin 0 will be 0, so this whole thing becomes 0. So finally dy by dx becomes 1. कैलकुलेशन सही से करेंगे, कैलकुलेशन वाला ही क्वेश्चन है ये. So slope of the normal, this is the formula. So slope of the normal is -1. आपको slope मिल गया, पॉइंट हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी 0,1. Now just write the equation of the normal. So x plus y equals to 1 is the answer. सिंपल क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सो दैट हम सही से क्वेश्चन बना पाए एग्जाम में, एज वेल एज टाइम भी हमें कम लगे. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ प्रॉब्लम नंबर 7. प्रॉब्लम नंबर 7 इज अगेन एग्जाम्पलर क्वेश्चन, और इसको फिर से टाइम दैट विल मैटर. ठीक है, इसमें कैसे टाइम सेव होगा आइए देखते हैं. सो दिस इज कर्व 1, दिस इज कर्व 2. हमें ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन फाइंड करनी है. दैट मींस दोनों कर्व परपेंडिकुलर होंगे, दोनों कर्व ऑर्थोगोनल होंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. उसका कंडीशन क्या होगा? सो नाउ दिस इज कर्व 1, दिस इज कर्व 2. हमने सबसे पहले अज्यूम किया लेट द कर्व्स इंटरसेक्ट एट x1 y1. लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, x1 y1 फाइंड करने की जरूरत नहीं है. जनरली हम लोग x1 y1 फाइंड करते हैं. याद रहे, डोंट वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग x1 y1, नॉट रिक्वायर्ड. सो फर्स्ट कर्व हमने लिया, इक्वेशन 1 कर्व लिया, dy by dx फाइंड कर लिया. सो वी गॉट dy by dx दिस मच. पॉइंट हमने लिया था x1 y1, पुट कर देंगे, सो दैट बिकम्स m1. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर हमने लिया, डिफरेंशिएशन किया, c इज ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो गया. लेफ्ट साइड u इंटू भी हमने अप्लाई कर दिया, dy by dx इज -y by x. अगेन x1 y1 पुट कर देंगे, सो दिस वन इज m2. सो वी गॉट m1, वी गॉट m2. ऑर्थोगोनल तब होता है जब दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा. दैट मीन्स m1 m2 इक्वल टू -1. अब आप जब m1 m2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली ये y1 कैंसिल हो जाएगा, x1 कैंसिल हो जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड. So that is the important point here. No need to waste your time in finding x1, y1. Now we got b square equal to a square. So final condition for the two curves to be orthogonal is a square minus b square is equal to 0. Important question है, दोनों ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पलर के हैं. Let us see problem number 8. Curve given है, पैरामेट्रिक फॉर्म में given है, and we have to find equation of the normal at any point. एट एनी पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया है. यदि ऐसा दिया हुआ है तो दिस इज द कर्व एंड दिस इज द पॉइंट ऑल्सो. दोनों यही है, पहले कर्व की तरह ट्रीट करना है और फिर पॉइंट की तरह ट्रीट करना है. तो यही हमारे दोनों कंडीशंस में यूज होंगे, कर्व के लिए भी और पॉइंट के लिए भी. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट इज दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. अगेन कॉन्सेप्ट सिंपल है, आप जानते हो, ओनली कैलकुलेशन आपको ध्यान देना है. सो फर्स्ट दिस इज x, हमने लिख लिया x, डिफरेंशिएट किया, वी गॉट dx बाई डी थीटा. थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि dx बाई डी थीटा सिंप्लीफाई करके इतनी आनी चाहिए. तो
तो दिस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी रिटन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि मल्टीप्लाई कर दो तो ये -3 साइन थीटा कैंसिल होगी, वी विल गेट -3 साइन क्यूब थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ dx बाई डी थीटा। सिमिलरली हम जाएंगे y में, y को हमने लिख दिया, फिर डिफरेंशिएट किया, अगेन सिंप्लीफाई करना इसको सही से, फाइन। सो फाइनली dy बाई डी थीटा विल बी 3 cos क्यूब थीटा। नाउ जैसा मैंने बोला यही पॉइंट भी है, सो dy बाई डी एक्स हम डायरेक्टली इसको फाइंड करेंगे, यही हमारा dy बाई डी एक्स आ जाएगा। सो यदि हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल चाहिए तो इसी को हम रेसिप्रोकल कर देंगे एंड नेगेटिव कर देंगे। सो दिस विल बी द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, क्या हो जाएगा, -1 बाई dy बाई डी एक्स, दिस विल बी द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नाउ अगेन दिस विल बी टेकन एज पॉइंट, so y minus y1 is equal to slope of the normal into x minus x1। सेम, अब यही पॉइंट की तरह काम आ रहा है, ये x1 की तरह यहां लिखा जाएगा और ये y1 की तरह यहां लिखा जाएगा। स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपको ये रेसिप्रोकल करना है, नेगेटिव करना है। cos क्यूब थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डोंट राइट इट cot क्यूब थीटा और tan क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट दिस। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सो y के टर्म को और x के टर्म को हम लोग एक तरफ लिख लेंगे, सो वी विल गेट दिस मच, ये हमें मिल जाएगा, एंड एवरीथिंग वी विल टेक इट टू द राइट हैंड साइड, फाइन। सो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा लीजिए। सो नाउ दिस विल कम टू राइट साइड एंड दिस विल बी देयर, सो कॉमन आ जाएगा 3 sin थीटा cos थीटा, we will get cos square theta minus sin square theta, which is the formula for cos 2 theta। अब ये sin theta cos theta है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, so this will become sin 2 theta। तो ये हो गया cos 2 theta, this becomes sin 2 theta। फिर से हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3/2 will become 3/4 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Now again 2 sin 2 theta cos 2 theta will become sin 4 theta। अब इस 4 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, दिस वी विल गेट, एंड दैट इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 9, अच्छे से केयरफुली बनाएंगे प्रॉब्लम नंबर 9 एंड प्रॉब्लम नंबर 10 बोथ। सो प्रॉब्लम नंबर 9, कर्व गिवन है 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 5x क्यूब, एंड अनदर इंफॉर्मेशन इज नॉर्मल पासिस थ्रू ऑरिजिन। Then the point where normal is drawn, we have to find the x coordinate or abscissa from the given options. So this is the given curve, फटाफट हमने dy by dx find कर लिया, let the point, so where the normal is drawn is x1 y1, so this is dy by dx at x1 y1। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे एंड नेगेटिव कर देंगे, so -1 by 2 minus 5x1 square, so that will be the slope of the normal। पॉइंट हमने लिया है x1 y1, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हम लिख देंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नाउ इट पासेस थ्रू ऑरिजिन, पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन बनाया है, पासेस थ्रू दी ऑरिजिन, तो ये जो ऑरिजिन है ये एक्स वाई की वैल्यू होगी, इसको ध्यान में रखना है, x के जगह पर 0 और y के जगह पर 0 पुट कर देंगे। नाउ दिस y1, दिस इज y1, x1 y1 will satisfy the equation of the curve, so y1 will become 6x1 minus 5x1 cube divided by 3। so y1 की वैल्यू हम लोग कर्व से पुट कर दिए हैं, and x and y we have put origin, that is 0 0। now just simplify, सो x1 हमारा कैंसिल हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा एंड वी विल गेट सम वैल्यूज ऑफ x1, मैच कर लेंगे। हमारा ऑप्शन ए में 1 प्रेजेंट है, सो x1 इक्वल टू 1 इज द फाइनल आंसर, हमें ओनली x कोऑर्डिनेट चाहिए था। नाउ प्रॉब्लम नंबर 10 थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है, ध्यान से बनाना है। So curve given है again in the parametric form, we have to find slope of the tangent at a particular point 2, -1।
सो सबसे पहले हम लोग x फाइंड कर लेंगे, x से dx by dt फाइंड कर लेंगे एंड फ्रॉम y वी विल फाइंड dy by dt. ऑब्वियसली दोनों को डिवाइड कर देंगे, दिस इज dy by dx. नाउ पॉइंट गिवन है, x कोऑर्डिनेट गिवन है 2 एंड y कोऑर्डिनेट गिवन है -1. सो सपोज x कोऑर्डिनेट है 2, जैसा हम लोग जानते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में दिस इज ओनली टेकन एज द पॉइंट. सो इस पॉइंट को हम लोग 2 से इक्वेट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, t की दो वैल्यू आ जाएगी, हमारे पैरामीटर t की दो वैल्यू आ जाएगी -5 एंड 2. इफ वी आर टेकिंग t एज -5 और इस t को हम लोग y कोऑर्डिनेट में पुट कर देंगे, सो वी आर गेटिंग हियर y इक्वल्स टू 55, which is not possible because y should come -1. That means this value of t is rejected. Now we will consider t equals to 2. फिर से हम लोग इस y के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, चेक करेंगे, so y will come -1 which matches under the given condition. That means ये हमारा t का करेक्ट वैल्यू है. हमें चाहिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट. अब जो ये t की वैल्यू है, अब हम लोग पुट कर देंगे dy by dx के एक्सप्रेशन में, सॉल्व करेंगे, वी गॉट 6/7 विच इज ऑप्शन बी. प्रॉब्लम नंबर 11. दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्कशीट 3, टेंजेंट एंड नॉर्मल. लास्ट प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. दिस इज फ्रॉम एग्जाम्पलर. आइए डिस्कस करते हैं. सो प्रॉब्लम में गिवन है दिस touches the curve, that means this is the tangent, this is the equation of the tangent, and now prove that a square cos square alpha plus b square sin square alpha is equal to p square. ये हमें प्रूव करनी है. स्टार्ट करेंगे विद द कर्व. नो नीड टू डिस्कस टेंजेंट राइट नाउ, टेंजेंट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हमने कर्व को ले लिया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. डिफरेंशिएशन किया, वी गॉट dy बाई dx. हमने एज्यूम किया टेंजेंट जो है ड्रॉ किया जा रहा है एट द पॉइंट x1 y1. सो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड ऑब्वियसली वी कैन गेट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y माइनस y1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस x1. पहले भी हमने डिस्कस किया है, b स्क्वायर शुड गो विथ y एंड a स्क्वायर शुड गो विथ x. ऑल्सो y1 will be multiplied this side and b square denominator में आ जाएगा. Similarly here x1 will be multiplied here and a square will remain in the denominator. Individually divide कर देंगे, इधर तो मैंने divide कर दिया है, rearrange करेंगे, we will get this much and this value will be 1. Why? Because x1 y1 will satisfy the equation of the curve. x1 square by a square plus y1 square by b square will be 1. So this value will be 1. We will get this much. Now, this we have got equation of the tangent, but it is given in the problem that equation of the tangent is this. That means this is also equation of the tangent we have got and this is given in the problem itself. That means obviously both have to be identical. So coefficient of x cos alpha divided by whatever is the coefficient of x here. So cos alpha divided by x1 by a square is equal to similarly coefficient of y divided by coefficient of y, constant divided by constant, they will be proportional. From here this and this if we equate we get cos alpha. ध्यान देना है, जो हमें प्रूव करना है, हमें चाहिए a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा. वी हैव गॉट कॉस अल्फा. हम क्या करेंगे, एक 1a वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल गेट a cos अल्फा इज इक्वल टू p x1 बाई a. स्क्वायरिंग कर देंगे, वी विल गेट a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा वैल्यू. इसी तरह से यदि हम इसको इक्वेट कर देंगे इसके साथ, सेम प्रोसेस में सॉल्व करेंगे, वी विल गेट b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. अब a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ऐड कर देंगे, p will be taken common, so x1 square by a square plus y1 square by b square. Again this will be 1 because x1 y1 will satisfy equation of the curve. Square, this will be p square
when we are doing squaring, this will be p square. And so finally we are getting p square as the final answer. This is what we had to prove. So these were the 3 worksheets on tangent and normal. Next topic will be maxima and minima.